کراچی گلستان جوہر میں فائرنگ سے جامعہ ابوبکر کے محتمم ضیاء الرحمان جاں بحق موٹر سائیکل پر حملہ کرنے والے فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ کراچی پولیس چیف نے DIGE سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ CTD نے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ SSP عرفان بہادر کا کہنا ہے واقعہ ٹارگٹ کلنگ مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ واقعے میں بھارتی ایجنسی را کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کا مقصد ربیع الاول پر امن و امان کی صورتحال خراب کرنا ہے۔ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے سے 2 موٹر سائیکل پہ سوار لڑکے آئے ہیں اور آ کے انہوں نے مولانا کے اوپر اسٹریٹ فائر کیا ہے۔ تو واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا لگ رہا ہے، ہر اینگل سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ پورا پاکستان انشاءاللہ میاں نواز شریف کی واپسی کا منتظر ہے اور انشاءاللہ دوبارہ معیشت اور ملک اسی طرح ترقی کرے گا جہاں پر میاں نواز شریف نے پاکستان کو 2017 میں چھوڑا تھا، جب ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں ایک سازش کے تحت ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا۔ نواز شریف اقتدار سے محروم نہیں ہوئے، پاکستان کے عوام ترقی اور خوشحالی سے محروم کر دیے۔ بڑے میاں صاحب 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے۔ لندن میں لیگی رہنماؤں کے بڑوں کی بیٹھک میں فیصلہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں پورا پاکستان نواز شریف کو ویلکم کہنے کی تیاری کرے۔ لاہور لینڈنگ پر تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے محروم کیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی نہ ہوتی تو آج پاکستان بہت آگے ہوتا۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ ماضی کے حلیف ایک بار پھر بن گئے حریف بلاول بھٹو کے 90 روز میں الیکشن کے مطالبے پر ایک سیاسی جماعت کی چیخیں نکل گئی۔ الزام تراشی کا بھرپور جواب دیں گے پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے خلاف اعلان جنگ۔ جیالے عام انتخابات کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو یہی طے ہوا تھا الیکشن کرائیں گے، لیکن اس وقت آپ کو فکر تھی کہ کیسز کا کیا بنے گا۔ آصف زرداری نے شہباز شریف کو کہا وزیر اعظم بن کر اپنے کیسز خود ختم کر لے، دوغلی پالیسیاں نہیں چلیں گی، نون لیگ کو اپنی نااہلیوں کا اعتراف کر کے بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ حسن مرتضیٰ نے صاف بتا دیا، سوال اٹھایا، بتائیں ڈار سے ڈالر کیوں کنٹرول نہیں ہوا۔ رانا فاروق نے ملک کے معاشی حالات کا ذمہ دار اسحاق ڈار کو ٹھہرا دیا۔ نون لیگی رہنماؤں کو جاری کیے گئے فنڈز کی تحقیقات کی مطالبہ کر دیا۔ PDM کی جو حکومت تھی وہ 15 ماہ کی تھی اور اس 15 ماہ کے اندر یہ عزمہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ حکومت نہیں تھی، یہ جدوجہد تھی، یہ جہاد تھا لٹرلی۔ شہباز شریف صاحب بھی تو کرتے رہے، جو ہے وہ ہر ایک تقریر سے بلیک میل ہوتے تھے وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ وفود کی سطح پہ بلایا بھی جاتا تھا، پھر جو ہے وہ اربوں روپے کے پیکج جو ہے وہ دیے بھی جاتے تھے، اناؤنس بھی کیے جاتے تھے۔ ہم بات کو وہ 90s والی اور اس میں نہیں لے جانا چاہتے کہ ہم بھی ترکی بترکی وہی جواب دیں، پھر ہم بھی آپ سے بہت سارے سوالات پوچھیں جس کے جوابات شاید آپ کے پاس نہ ہو۔ فوری الیکشن کے مطالبے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ الیکشن کمیشن یا صدر مملکت انتخابات کی تاریخ دیں، کوئی تو اعلان کرے۔ شرمیلا فاروقی کا مطالبہ، الیکشن کا 90 روز سے اوپر جانا غیر آئینی ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی کی پروگرام نیوز ٹاک میں گفتگو۔ لیگی رہنما عثمہ بخاری نے بلاول بھٹو پر پوائنٹ سکورنگ کا الزام دھر دیا، کہا سب فیصلوں میں شامل ہو کر بعد میں مکر جانا عوام دیکھ رہے ہیں۔ مہنگائی کا سونامی، بے روزگاری، غربت کا جو معاشی بحران کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے کرائم ملک بھر میں بڑھتا جا رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے، کسی ایک کے لیے تو ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور یہی میرا اعتراض ہے۔ پاکستان کے بارڈر، وہ دہشت گرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے، ان کو آباد کرنے کا
प्लान बनाया था। जनरल फैज साहब था और जो इनको ये अंदाजा नहीं था कि अगर वो साबिक टीटीपी, साबिक अल-कायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंचने तक। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, यही मेरा एतराज़ है। मुल्क चलाने का पुराना तरीका तब्दील करना होगा। गलत फैसला करने वाले अगर सियासतदान हैं तो उनका एहतसाब अवाम करेंगे। अगर दूसरे इदारे के लोग थे तो इदारा उनका एहतसाब करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। मुल्क में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा कच्चे के दहशत गर्दों के पास पहुंच चुका। अंदाज़ा होता है चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खौफनाक थी। इस शख्स ने अफगानिस्तान से फरार दहशत गर्दों को यहाँ आबाद करने का मंसूबा बनाया। एहतसाब किया जाए कि ये कैसे हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मसाइल का हल अवामी राज है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस्लामाबाद में बैठाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग से मुफाहमत हो सकती है। इलेक्शन से नहीं भाग रहे। 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल के सियासी तंज पर रद्द-ए-अमल। सरबराह जेयूआई ने परवेज खटक और महमूद खान को नाकाबिले एतबार करार दे दिया। सरबराह जेयूआई ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं होगा। सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वजारत कानून से समाअत अटक जेल मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी। सानेहा 9 मई की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन पीटीआई 10 नामजद मुकदमात में गुनहगार करार। पीटीआई सरबराह के खिलाफ मरकजी मुकदमे का चालान 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल। ज़राए जेआईटी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतल्लिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। 9 मई के वाक़यात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी दौरान तफ्तीश मिले। कुछ ग्रुप है ख़वातीन का कि जो राइजिंग स्टार्स होते हैं उनको काबू कर लेती हैं। ये ग्रुप है। इस तरह देखे ना, मैं तो मेरा बेटा तो चलो फिर छोटे लेवल पे है। साथ क्या हुआ, बड़ा समझदार बंदा है, बड़ा सियाना बंदा है और इतनी हाई पोजीशन में चला गया है। कुछ तो उसमें गट्स होंगे ना, तो वो कैसे उस चक्कर में आ गया। तो फराद इसी ग्रुप का हिस्सा है। हाँ डेफिनेटली, इसमें क्या शुक्र है। बेटे ने हमसे चोरी सारा काम किया। जब हमें पता चला हमने बड़ा रिएक्ट किया। क्या राब्ता नहीं है आपने? नहीं कोई नहीं। बेटा कभी उसका दिल करे तो कुछ 6 महीने साल बाद कभी सलाम कर ले, बाकी कोई राब्ता नहीं। फरागोगी के सुसर के सनसनी खेज इंकशाफात। फरागोगी और बुशरा बीबी उस गैंग का हिस्सा है जो सियासतदानों को जाल में फंसाता है। इसी गैंग ने उनके बेटे और चेयरमैन पीटीआई को भी ट्रैप किया। मेरे बेटे ने फरागोगी से छुपकर शादी की। चौधरी इकबाल की नियो न्यूज़ से तहलका खेज गुफ्तगू। साबिक एमपी और फरागोगी के ससुर का कहना है मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं। खवातीन के इस गैंग ने बड़े बड़े सियासतदानों का शिकार किया। चौधरी परवेज इलाही अपने बेटे के हाथों ट्रैप हुए। वफादारी बदलने वालों की एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में कोई माफ़ी नहीं। ठोस शवाहिद हों तो आर्मी एक्ट के तहत किसी मुलजिम को दूसरे जुर्म पर भी सज़ा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की 2 फौजी अफसरान की साजिश से मुतल्लिक अपील पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में अफसर से पेंशन समेत दीगर मरात अब वापस ली जा सकती हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में तेजी। 7 रोज़ा मुहिम में 6215 बिजली चोर के केसेस पकड़े गए।
2380 मुकदमा दर्ज। टीमों ने मुख्तलिफ शहरों से 38 करोड़ से जायद की बिजली चोरी पकड़ी। मुलजिमान से 3 करोड़ 2 लाख रुपए रिकवर। मुल्तान में ऑपरेशन का 5वां रोज 1597 बिजली चोरों को 10 करोड़ 15 लाख के जुर्माने आए। गुजरावाला में मजीद 178 बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। 11 जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा, मियाँवाली, ईसा खेल, दाऊद खेल में भी दर्जनों कुंडे डालने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। इधर निगरान हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने पर हो। जमात इस्लामी की बिजली की कीमतों में कमी ना करने पर शहर इक़्तिदार की जानिब मार्च की धमकी। पहिया जाम का भी इंदिया दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं महंगाई के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले के दौरान चारों गवर्नर हाउसेस के सामने धरने होंगे। कौम मुत्तहिद रही तो बेहतर नताइज सामने आएंगे। चोर दरवाजे से डॉक्टर बनने वाली तलबा नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तिहान में फेल हो गए। पाकिस्तान में मेरिट पर ना आने वाले तलबा ने अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लिए। बगैर हाजिरी और पढ़ाई के डॉक्टरी करने वाले सिर्फ 4% तलबा NRI इम्तिहान में पास कर सके। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स फेल तलबा को पास कराने के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर जरका, मेहरताज रूहानी और रुबीना खालिद मेरिट कम करने के लिए PDMC पर दबाव डालने लगी। पासिंग परसेंटेज कम करने का मुतालबा। अफगान सूबा पक्तिका में मुफ्ती नूर वली का दस्ते-रास्त दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग के धमाके से हलाक हुआ। बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस और इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। लीबिया में क़यामत खेज मनाजिर। समुद्री तूफान डैनियल ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3000 से ज़ायद अफराद हलाक। 10,000 से अफराद सैलाबी रैलों में बहकर समुंदर की नज़र हो गए। वज़ीर सेहत ने डूबने वाले तमाम अफराद की हलाकतों का खदशा ज़ाहिर कर दिया। सैलाब मुतादिद साहली बस्तियों को बहा ले गया। सैकड़ों मकानात तबाह। रही सही कसर टूटने वाले 2 डैम्स ने पूरी कर दी। मराकश में जिंदगी की तलाश की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। चंद रोज कबल आए 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से हर तरफ तबाही के मनाज़िर। ज़मीन बोस दर्जनों इमारतों में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमवात की तादाद 3000 तक जा पहुंची। 5000 से ज़ायद ज़ख्मी। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। आलमी रहनुमाओं का इमदादी टीमें और सामान भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से 1 लाख बच्चे मुतासिर हुए। भारत ने लंका ढा दी। एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इंडिया ने सुपर 4 मरहले का अहम मैच 41 रन से जीत लिया। 214 रन के ताकुब में श्रीलंकन टीम 172 रन पर ढेर। कुलदीप यादव ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बुमराह और जडेजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। कप्तान रोहित शर्मा 53 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन स्पिनर वलेला गे ने 5, श्रीलंका ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम के लिए बड़ा धचका। हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी का शिकार। एशिया कप के बकिया मैचों के लिए जमान खान, शाहनवाज धानी को कोलंबो बुला लिया गया। कौमी टीम के मेडिकल पैनल ने हारिस रऊफ और नसीम शाह की इंजरी का मुआयना किया। दूसरी जानिब ऑलराउंडर सलमान अली आगा की भी इंजरी। श्रीलंका के मैच में शिरकत मशकूक।